Very fine. So we studied yesterday this Sandhi Prakaranam. We started, huh? Yes. Now today you will start from explaining Ach Sandhi, Swar Sandhi. Ach Sandhi. Ach Sandhi, Vyanjana Sandhi and Visarga Sandhi. There are three types of Sandhis. Ach Sandhi, Swara Sandhi, Prakriti Bandhi, Hal Sandhi, Visarga Sandhi, Swadi Sandhi, Cheti. These are five types of main divisions. Atra Bodhana Saukaryartham. Facilitate the student's understanding. Trividhaha Sandhayaha iti vibhago darshitaha. Here in this book, three categories has been given. You can display. The PDF has been shared, Varinder. Sandhi, Swara Sandhi, Vyanjana Sandhi, Visarga Sandhi. Ach Sandhi. Ach Sandhi is equal to Swara Sandhi. Okay. I'll read from Chirantani, then I'll translate. Swarena saha, swarasya melanameva swarasandhi ityuchyate. Very simple. Where the swara varna gets connected to another swara varna is known as swarasandhi. Here is the PDF. You can enlarge it a little bit. No, next page. This is not the page. Next page. Second page. This is left side. Arthat, now they are explaining what is Swarasandhi. केनचित् स्वरेण सह कस्यचित् स्वरस्य मेलनेन यह विकारः जायते तद् विकार प्रक्रिया विशेषः स्वरसन्धि नाम्ना अभिज्ञायते. Very beautifully written. You can learn Sanskrit also from here. अर्थात what is स्वरसन्धि? ना केनचित् स्वरेण सह, किसी स्वर वर्ण के साथ, कस्यचित् स्वरस्य मेलनेन यह विकारः जायते, किसी स्वर वर्ण के साथ दूसरे किसी स्वर वर्ण का मिलन होने पर यह विकारः जायते. The vikara which happens. Okay. Anyway, if you listen also it's fine. If you cannot enlarge, it's fine. केनचित् विकारः जायते तद विकार प्रक्रिया विशेषः. Vikara means transformation and vikara prakriya visheshaha. The action of that transformation. Swarasandhi namna avijñayate. So that transformation, the process of transformation where there are two swara varnas standing at each other, that is known as Swarasandhi. Swarasandhi namna avijñayate. Athava or अथवा स्वरस्य स्थाने आदेशः स्वरसन्धिः इति च उच्यते. Or it's not necessary that both letters will intermingle and get converted to something else. It may happen that there was an existing swara varna and something else is instructed in that same place. That is also Swarasandhi. Like A and E becomes A, or E and A becomes Ya. So Ya is a Vyanjana Varna and E is a Swara Varna. But because Ya has been instructed at the place of E, that's why it will be counted as Swara Sandhi, not Vyanjana Sandhi. Clear? Yes, yes. तो मुझे हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. हाँ, हिंदी में भी बोलिए.
हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या है कि स्वर संधि उसी को कहा जाता है जहां पे दो स्वर वर्णों का मिलन से विकार उत्पन्न होता है, उस प्रक्रिया विशेष को स्वर संधि कहते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि इको यणचि जैसे सूत्र है, ई उ रील री के स्थान पर या व र ल का आदेश हो जाएगा। तो ई उ रील री परिवर्तन हो जाएगा, बट के आगे जो स्वर वर्ण है उसका कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जैसे यदि प्लस अत्र, यदि में ई है, अत्र में आ है, बिकम्स यद्यत्र, तो ई के स्थान पर य का आदेश हो गया। तो या तो एक व्यंजन वर्ण है, अब किसी को लगे कि ये व्यंजन संधि है, नहीं, किसके स्थान पे आदेश हुआ है वो ज्यादा जरूरी है। तो ई के स्थान पे आदेश हुआ है, ई एक स्वर वर्ण है ना कि व्यंजन वर्ण, इसीलिए ये स्वर संधि में गिना जाएगा। क्लियर? नदी प्लस अंबु, नद्यंबु, सुधी प्लस उपास्य, सुध्युपास्य, ये सब उदाहरण है। चलिए, अत्र पूर्व पदस्य अपि, हाँ, यथा अपि प्लस एवं अप्येवं, अत्र पूर्व पदस्य अपि इत्यस्य अन्ते विद्यमानः इकारः उत्तर पदस्य एवं इत्यस्य आरंभे एकारः वर्तते। अपि प्लस एवं प्लस ए, now the e will get converted into ya, अर्थात अपि प्लस एवं इत्यत्र पूर्व भागस्य अन्ते इकारः उत्तर भागस्य आरंभे एकारः द्वावपि स्वर एव, both are swara varnas. Okay, if you write down you will understand, otherwise you won't understand. इको यणचि इति सूत्रेण इकारस्य यकार देशः संजातः, विकारस्य ईदृशी सामान्यतः स्वर नामना प्रसिद्ध वर्तते। So you saw as eva, e became ya with the support of Iko Yana Sutra. So the e short ya. You can see ya consonant e is a vowel, but because the vowel got converted into consonant, that's why it will be counted as swara sandhi. Clear for everybody? Yes. वरिंदर समझ में आ गया? यस प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, Yes, आ रहा है, सब प्रभु। समझ आ रहा है। वेरी गुड, तो लिख लीजिएगा, तभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अयम ही स्वर संधि अष्टभिः कारैः विभक्तो वर्तते। अष्टभिः कौन सी विभक्ति? विच विभक्ति? सर्वदेवदास, प्रभु जी क्या वर्ड बोला आपने? आशी, तृतीया बहुवचन। अयम ही स्वर संधि अष्टभिः प्रकारैः विभक्तो वर्तते, एंड प्रकारैः, तृतीय विभक्ति बहुवचन है प्रभु जी, अष्टभी। हाँ, दोनों ही बहुवचन तृतीया विभक्ति, बट एक का रूप अष्टभी हो गया, दूसरे का प्रकारैः ही हो गया। तदत्र रेखाचित्र माध्यमेन प्रस्तूयते। सो नाउ दिस अच संधि और स्वर संधि is divided into 8 types. So you can keep on writing yan sandhi, yan sandhi number 1, number 2, इसको थोड़ा enlarge कर सकते हैं, यांत वांता देश संधि,
left you can see yanta vanta desha sandhihi. Number 3, guna sandhihi. Number 4, vriddhi sandhihi. Number 5, savarna dirgha sandhihi. Number 6, purva rupa sandhihi. Number 7, para rupa sandhihi. Number 8, prakriti bhava. So these 8 types of swara sandhis are there, or ach sandhis are there. What are they? Again I am repeating: yan sandhihi, yanta vanta deshah sandhihi, guna sandhihi, vriddhi sandhihi, savarna dirgha sandhihi, purva rupa sandhihi, para rupa sandhihi, and prakriti bhava sandhihi. Now, yan sandhi, yanta vanta desha sandhi, or guna sandhi, this comes in a single set. What happens here? In these 3 sandhis, in the place of 2 letters, only the previous letter gets changed and the letter remains the same. Like we did, yadi plus atra is equal to yadyatra. Okay. Api plus evam, apyevam. Only E got converted, A remained the same. So, Got it? yes. So yan sandhi, yanta vanta desha sandhi, and guna sandhi. Remember, these first 3 sandhis, only the first letter gets changed, and then what is the other letter? Why is it for? Can anybody answer? सेम ही रहता है वो। हाँ? तो जो दूसरा वाला वर्ण है वो सेम रहता है, और पहला वाला जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे आपने हाँ, यद्यपि दूसरे बताया। वाले का नहीं होता है, तो फिर उसका काम क्या है? संधि कैसे होता है? उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो कैसे संधि मानते प्रभु जी, उसके चक्कर में आदेश हुआ ना, जैसे जन संधि में आदेश हो गया। हाँ, चक्कर में आदेश हुआ है, ये आपने बहुत सही रिप्लेस हो बताया। जाता है। हाँ, उसको चक्कर को हम कहेंगे निमित्त। निमित्त, ओके। ठीक है, निमित्त। वहां पे मेला हो रहा है, वहां पे भीड़ इकट्ठा है, तो मैं देखने गया, तो मेरा काम था वहां देखना, देखने जाना। निमित्त क्या है ना, भीड़ इकट्ठा है, तो भीड़ का कुछ नहीं होगा, आप जाएंगे, आप वापस आएंगे, तो निमित्त है। प्रभु, समटाइम्स हम ऐसे भी बोलते हैं ना, मैं वहां पर सिर्फ एक निमित्त मात्र ही था। हाँ, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। ठीक है, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। तो मीन्स जो सेकंड, इट मीन्स सेकंड लेटर इज ओनली फॉर आदेश, ओनली दिस इज फॉर आदेश। No, not Adesh. It's a nimitta. Okay. You have to use the right word, nimitta. In grammar, it's nimitta. So Arjuna is a nimitta, that he is killing all the Kauravas, but Krishna has already killed. He is just an instrumental. Okay. Chaliye. 4, 5, 6. Vriddhi sandhihi, savarna dirgha sandhihi, and purva rupa sandhihi, and para rupa sandhihi. This 4. Vriddhi, savarna dirgha, purva rup, and para rup. Here, purvasya parasya, both the first letter and the second letter. At the place of 2 letters, only 1 letter is being instructed. Clear? जी। दोनों के जगह में, दोनों वर्णों के बदले में एक वर्ण आता है। कौन कौन से में? वृद्धि, सवर्ण दीर्घ, पूर्वरूप एंड पररूप। Clear? This is the difference in between ach sandhi. And last is prakriti bhava sandhi. Atra adesha bhavo bhavat. In bhav, it will remain thus. It will remain the same. So, because there is no adesha,
no letter is being distorted or transformed. That's why it's called prakriti bhav. जैसा उसका प्रकृति था उसी प्रकृति में वो खड़ा है, उसका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ. Clear for everybody? Any question regarding this? Yes, sir. Anybody? रोज इसका एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जाम्पल सब देंगे आपको, भर के इतना एग्जाम्पल देंगे कि आप भंडारा खाने के बाद घर नहीं ले जा पाएंगे. सेकंड वाला एक बार दोबारा बताइए ना. ये एट द प्लेस ऑफ दोनों लेटर की जगह क्या हो जाएगा? एट द प्लेस ऑफ टू लेटर्स. At the place of two letters, one letter will be instructed. ठीक है. पहले में क्या था? दोनों के जगह में पहले का ही सिर्फ परिवर्तन होगा. ये था यण संधि, यांता वांता देश गुण संधि. इसमें पहले वाले वर्ण का ही परिवर्तन होगा. लेकिन वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, जैसे अमी प्लस ईशा, अमीशा, तो ई और ई मिलके ई हो गया. दोनों के जगह में एक का आदेश हुआ. ये हो गया दूसरा कैटेगरी. और तीसरा जो है प्रकृति भाव, जस का तस रहेगा. और क्या है? और कुछ नहीं है. अब देखिए एक एक उदाहरण. जिनके पास किताब नहीं है वो लिखते जाएं. यण संधि, दिस इज द फर्स्ट संधि. यण इज अ प्रत्याहार. यण इज विच प्रत्याहार? Now you need to हाँ, यण means यवर अला. हाँ, हयवरट लण, हयवरट लण. तो हयवरट से नहीं, या से लेंगे. या वरा लण, णा चला जाएगा. या वरा ला. These are the four letters needed. So yan sandhi means it will be converted into ya vara la. Then what will be converted into ya vara la? Na ik pratyahar. What is ik pratyahar? E un real re. That's why you have to remember this Maheshwar Sutra. I un real rik. Now the a. E u ri lrik. E u ri lrik. E u ri, E u ri lrik. तो लिक का चला जाएगा. E u real ri. That's all we need. So in E u real ri you write, and below you write ya va ra la. Clear? No more confusion. So E real ri, it can be short or long, does not matter. Got it? जी. इसमें प्लस फिर असवर्ण स्वर भी बोल रहा है ना? असवर्ण स्वरः, that is the nimitta. See, plus asavarna swaraha is written short. Why? Because that is just the instrument. Asavarna swaraha. Savarna means E before. There should not be E. Apart from E, it can be U, E, A, I, O, whatever. So it should not be the same letter next. आई बात सबको समझने? जी प्रभु जी. Very good. Now go to the example. Now see what the footnote. E, U, ri, lri इत्येतेषां वर्णानाम् अनन्तरं यदि असवर्ण स्वराः वर्तन्ते. असवर्ण स्वराः माने जो स्वर वर्ण है वैसा ही स्वर वर्ण बाद में नहीं होना चाहिए. तर्हि क्रमशः ई इत्यनयोः स्थाने यकारः. जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाया है वही ई के जगह या, उ के जगह या, उ के जगह वा, री के जगह रा एंड री के जगह ला होगा. लेकिन ये सभी हलंत होगा.
जब कोई स्वर से कॉन्सोनेंट कन्वर्ट होता है तो उसके साथ और कोई स्वर वर्ण नहीं होता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है जी प्रभु। हाँ, so it will be pure consonant. It will not contain any other vowel at all when it gets converted from vowel to consonant. Viram Das, clear? वो जी जब कोई स्वर वर्ण में व्यंजन बनता है फिर? हाँ, वो जी एक बार रिपीट कर दीजिए इस लाइन को। when any vowel will get converted into any consonant, that consonant will be a pure consonant. It will not contain any other vowel. हलंत होगा उसके नीचे। ई से जब य बनेगा तो यह हलंत होगा, य में आ नहीं होगा। ऊ से व हलंत व होगा। ये किताब आप खरीद लीजिए तुरंत। री से र हलंत होगा, री से ल हलंत होगा। अब कोई कंफ्यूजन नटरानी? यस प्रभु जी, क्लियर? क्लियर हो गया। यस प्रभु जी, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं। री से पढ़ते हैं। री री इत्यनयोः स्थाने रकारः ऋकारस्य स्थाने लकारस्य आदेशो भवति। तो जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ई के जगह या, उ के जगह व, री के जगह रा और ली के जगह ला। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है क्या? पंकज उदास नाम आता है मेरा, पंकज सूर्यवंशी, कोई है? देयर? नो। वेरी गुड। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट चार्ट आप ऊपर में देखते हैं, पेज चार्ट। हाँ, everybody need to keep this book actually. It will be easier for you. Ik, e, u, real, re. It is equal to ik. The first column is ik, pratyahar is then. And ik contains e, u, real, re, both short and long. Okay. The next one contains asavarna ach. It's a vowel, but not the same vowel. It has to be a different vowel. ठीक है? You can close the camera, Pankaj ji. So, हो गया। Third line, yan. Yan is the outcome, result. तो बीच वाला जो कॉलम है वो निमित्त मात्र है। पहला वाला लेटर बीच वाले को देख के कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आर रिक्वायर्ड। द मिडिल कॉलम इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र है। क्लियर नटरानी? देखिए, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हो गया। यदि में ई है, हमें संधि में अंतिम वर्ण को पूर्व वर्ण देखना है और पर वर्ण देखना है। तो अंतिम दोनों छोर को देखना है, उसके आगे पीछे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यदि में ई है और अत्र है, अत्र का आ लेंगे। ई प्लस आ का खेल हो रहा है। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ई प्लस आ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। So E and A, here E will become Ya by looking at the A. So A will be unchained. So Yadi becomes Yadya. Yadya plus Atra is equal to Yadyatra. Got it? Pankaj? Yes, Prabhu. Very good. So, see, just a while before I said that when the vowel will get converted into any consonant, that consonant will be halanta consonant. It will not contain any swara varna. So here, yadya, the ya is pure. You see, under the ya there is a halanta. Why? Keeping in mind that the next letter is a vowel. So that vowel
will get merged with ya. So that's how you become yadyatra. ठीक है? जी प्रभु जी। इसको हाँ, तो हिंदी या बोलिए ना, हलंत है। लास्ट वाली लाइन। हाँ, या के नीचे हलंत है, इसीलिए क्या हुआ कि बाद में जो आ है, अत्र का आ का तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो तो निमित्त मात्र है, वो तो भीड़ है, उसका परिवर्तन नहीं होना है। लेकिन उसका काम यही है कि जब यदि का ई या बन गया तो वो या आधा है, उसमें पूरा नहीं है, वो या आधा है, उसको किसी वावल की जरूरत है, तभी वो उच्चारित होगा। और अत्र का आ पड़ा हुआ है, तो अपने आप विदाउट एनी सूत्र, हाँ, वो उसमें मर्ज हो जाएगा। एक वार्तिक आता है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं, एक वार्तिक है, वार्तिक जो बररुच ने लिखा है। अच हिनम परेण संयोज्यम, जिस कॉन्सोनेंट के साथ अच वर्ण ना हो, यानी कोई वावेल ना हो, वो अगले वावेल से अपने आप मिल जाता है। अच्छिनम परेण संयोज्य, ऐसा एक सूत्र आता है, अज्झिनम परेण संयोज्य। ये सूत्र नहीं है, वार्तिक है। ठीक है? तो यदि का या हाफ है और अत्र का आ पूरा है, तो आ उसके साथ मिल गया, इसलिए यद्यत्र बन गया। अब यही पूरे लिस्ट में यही खेल चलेगा। एक समझ लिया तो पूरा समझ जाएंगे। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, देखते जाइए। नाउ यू कैन फॉलो योरसेल्फ। नदी प्लस अंबु, E becomes ya, whether it's long E or short E does not matter, become nadyambuhu. Sudhi plus upasyaha becomes sudhyupasyaha. See, sudhya, E becomes ya, and then upasya U gets conjoined with ya, so becomes sudhyupasya. Clear? Madhu plus arihi, madhwarihi. सर्वदेवदास पूरा समझ में आ रहा है? मध्वरिही. यस यस। हाँ, madhu, see, here it is u. So u will get converted into va if there is any other vowel apart from u. Okay, so u के बाद madhu plus ari है, तो u and a are two different vowels, so u becomes get converted into va, madhwarihi. Vadhu plus agamanam, vadhvagamanam. Pitri plus icha, re will become ra, pitricha. See, pitricha, the ta got rafala. Here re, when it gets converted, it becomes ra, halanta ra, pure ra. That ra immediately got connected with ta. Okay, no, sorry, it was already there. Re was with ta, but re got converted into ra. Re is a vowel and ra is a consonant. So when ra gets converted with ta, it looks like this tra, like kshatriya wala tra. So it becomes pitricha. This people mistakes, okay? So pitricha and pitri icha are two different things. Pitri, this rikar is a vowel, and pitricha, that ra is the consonant. Okay? आई बात समझ में सबको? यस प्रभु जी। ठीक है। अब देखिए लरी, घसलरी प्लस आदेश, लरी is also a kind of vowel. So lri plus a, so it turns into la. Lri is a vowel and la is a consonant. So ghasladesha. Okay, this is all about. They gave example of all 4 types of transformation that happens in yan santhi. E gets ya, u gets va, re gets ra, and re gets la. There is nothing big in it. Okay, but the condition is that the letter, the second
vowel should not be the same, has to be anything else other than the previous one. That's the condition only. Viram Das? Yes, Prabhu, I understand. Very good. I just want to thank the devotees who post up this. It helped me a lot to understand it better also. Yes. Now there is in the second row also they have given more example. Ati plus alpa, atyalpa, yadi plus api, yadyapi, dhatri plus amsa, dhatramshah. Same theory. You understand? So I'm not going into it. It's the same thing happening here. There they have put columns and shown you the chemistry, and here they are directly doing the sandhi. But it's the same type of, it's called yan sandhi, because the sutra says iko yanachi, ik ko yan hota hai, achi pare rehne par. Ach mane hota hai swara varna, ion, real rik, a ong, I ouch. All swara varnas are there. तो बाद में आपको ए रहे, आई रहे, औ रहे, री रहे, ली रहे, व्हाटएवर, पहला वाले का परिवर्तन होगा। पहला सिर्फ ई उ री री का ही परिवर्तन होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? जी प्रभु। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? चलिए अब सेकंड, यांत वांता देश संधि ही। यांतो वांतो च, तो यांत माने या जिसके अंत में हो, और वांत माने व जिसके अंत में हो। ठीक है, तो आय और आय, इसके अंत में या है। आई एंड आई बोथ कंटेन्स या, एंड अव, आव, जैसे हिंदी में बोलते ना अब, तो अव, आव, both are having vakar at the end. So yanta vanta, which contains ya at the end and or va at the end, such kind of sandhi is known as yanta vanta desha sandhi. अच्छा देखिए, इन सूत्र आदेश, यांत वांत आदेश, जिस यांत और वांत आदेश हो, यानी दैट इज द आउटकम। ओके, so what gets converted into I, of, ab? Now A gets converted into I, I gets converted into I, O gets converted into av, au gets converted into av. Up to this clear? Yes, Prabhu. Yes, Yes. yes. Yes, Very Prabhu. good. And what is the nimitta? Is any swara varna. Any swara varna. Okay? It does not say that, like in the previous, there was a condition that it has to be some other swara varna, but here there is no such condition. Now, take the example. Hare plus A. Hare plus A. See, both are A and A. Hare plus A. But here, the condition is any swara varna is allowed. So, Hare has A and the nimitta is A. So, looking at A, the first A will get converted into I. Okay. Yes. So, Hare will become Hare. Hare will become I. Plus A is equal to Haraye. Hari Haraye Namah Krishna Yadavaya Namah. Haraye कौन सी विभक्ति है? अरे प्रभु जी तृतीय, चतुर्थी एक वचन, हाँ, चतुर्थी, एक वचन, चतुर्थी विभक्ति है। हरये, हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द। हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरिन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, चतुर्थी विभक्ति। नाउ नई प्लस अकः, आई
You just have to consider, थोड़ा नीचे आइए, I प्लस आ, वरिंदर जी थोड़ा ऊपर करिए, हाँ, नई प्लस अकह, कर्सर वहां पे रख दीजिए, नई प्लस अकह, तो नई का जो आई है will get converted into I. A will becomes I will become I. So nai is equal to nai plus akah nayakah. Nayakah means hero. Okay. Similarly, Vishnu plus A, Vishnu O becomes Av. So Vishnu is equal to Vishnav plus A, Vishnave. This is also Chaturthi Vibhakti. Then last example is O plus Akaha. O plus Akaha. जिनके पास किताब नहीं हो लिखते जाएं, O plus Akaha. So O will become Av. O becomes Av. O becomes Ab. Pau plus Akaha is equal to, Pau means Pab हो गया. Pab plus Akaha, Pavakaha. Pavakaha wind. Pavaka means, yeah. Pavake Jalashainam. Clear? पावक का मतलब आग, राइट? अग्नि। प्रभु जी, हेलो। हाँ, पावक का मतलब हाँ, आग, पावक अग्नि, राइट? अग्नि, राइट। Yes. पावक पावके जलशायनम। जलशायनम। हाँ, तो इसका अर्थ ये है, यू आर कानने surrounded नरसिम्हा by, पावके जलशायनम जल मध्य बराह। when you are surrounded by fire, you should meditate on Shainam Vishnu. Then he will save you. Okay, Pavake Jalashainam, Pavakam Agni. Vanta Desha Sandhi, we understood. प्रभु जी, it is mentioned जानता वांता आदेश संदेह धारणानि। इसका क्या मतलब होता है? मतलब few udahani means few examples of it. Okay. और उदाहरण दे दिया, हरे प्लस आगच्छ, हरे आगच्छ, हर तस्य इदं, तस्याहं, तस्य इदं। तो ये बेसिकली इन दोनों संधियों में we have to change only पूर्व वर्ण, राइट? दैट्स इट। पूर्व वर्ण के हिसाब से आदेश होगा, जो भी होगा। ओके, एंड वन मोर पूर्व वर्ण इज गुण संधि। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ अवधेयांशः। ध्यान देने योग्य बात क्या है? दान्ते विद्यमानानाम ए ऐ ओ औ इत्येते वर्णानां क्रमात् आय आब इत्येते आदेशाः यदा भवन्ति तदा यकार पकारश्च च रूपेण लोपवति, लोपानन्तरं पुनः संधि न भवति। अब होता क्या है? happens some I of are doing this, there are certain sutras says the ya will be eliminated or va will be eliminated. This happens in prakriti bhav sandhi that we'll read later. So when this ya and va is eliminated, then it remains as it was. Okay. So that we'll read later. So any question related to this, we will read slowly. Okay. Otherwise get confused. You digest two things first. Yan Sandhi and Yanta Vanta Desha Sandhi. If you have any question, you can ask. सभी को समझ में आ गया?
हाँ जी। You understood everything, huh? ठीक है, संधि को आप साधन कीजिए अच्छी तरह से, और हम रोज दो दो कर संधि पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें, हर एक में रूल्स बदलता जाएगा। देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ रूल इन एवरी संधि। सो आज हमने क्या सीखा? हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने यहाँ को बताया था कि स्वर वर्ण व्यंजन बनता है, व्यंजन किसी स्वर के साथ जुड़ा नहीं, हालांकि ही रहेगा वो। तो जो फर्स्ट वाला नहीं नहीं, ऐसा जो नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैंने कहा जब कोई स्वर वर्ण व्यंजन में परिवर्तित होता है तो स्वर व्यंजन वर्ण रहता है, प्योर व्यंजन वर्ण होता है, यानी उसको किसी वावेल के सपोर्ट के वो उच्चारित नहीं हो सकता। जैसे इको यणचि को या आदेश होता है, या के हलंत होता है। चूंकि हलंत होता है इसीलिए बाद वाला स्वर वर्ण उसके साथ मिल जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, में समझा है ना, यदि का ई या बन गया, अब अपि का उसमें मिल, तभी यद्य बना। अगर यह पूरा होता उसके बाद आ है, सवर्ण दीर्घ संधि होकर यद्यापि हो जाता। तो चूंकि वो अकेला है, प्योर व्यंजन वर्ण है, इससे उस स्वर वर्ण मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, ये पर एक चीज पूछना है प्रभु जी। एक को मैं पढ़ रहा हूँ तो जैसे हम लोग नाम अपराध पढ़ते हैं जनरली, जैसे हिंदी या बांग्ला इंग्लिश में, तो पद्म पुराण संस्कृत का जो शिव श्री विष्णुज इह नामादि सकलम पश्येत स हरि नामा हित करह, यह पश्येत, मैंने इनके गुण को जो अलग से देखो तो ये नाम अपराध, ऐसा समझ में मुझे आ रहा है। हम क्या पढ़ते हैं कि उनके बराबर नहीं समझना चाहिए। इस संधि विच्छेद संधि चैप्टर आया तो मैं इसीलिए इसको पूछ रहा हूँ, इसको जरा सा। शिवश्च श्री विष्णोर्य यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत खलु हरिनाहित करह। तो इसको टेम्पल में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं? मैंने विष्णु के बराबर नहीं समझना शिव और इसको। यहाँ तो आ रहा है कि दिया भिन्न पश्येत, अगर अलग देखो तब अब हो रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इसके में क्लियर कीजिए। हाँ, दिया भिन्नम, धिया ध्यान से उत्पन्न हुआ है, भिन्नम पश्येत माने भिन्नम पश्येत हरिनाम, भिन्न भी है, भिन्न नहीं भी है। हाँ, दोनों चीज है इसमें दोनों ही भाव किया जा सकता है, लेकिन चीज अक्षरिक अर्थ लेंगे तो इनमें कोई भेद नहीं है। हाँ, भेद नहीं, वही बात है। हाँ, भेद नहीं है। लेकिन हमको तो भेद बोला जाता है ना। भेद कहाँ बोल, अरे सुनाता हूँ, करके समझेंगे तब भेद, तब आपको अपराध होगा ना। क्योंकि कोई भी देवता, कोई हम है, जैसे जीव है, तो हम भगवान एक प्रकृति, हम उनसे संबंधित है। हमारी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं है, हमारी कनेक्शन उनके साथ है। एक बिजली के बल्ब का कनेक्शन पावर के साथ है। तो ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर शिव, इसको शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। ये स्वतंत्र भी नहीं, समान भी नहीं। अरे इसमें क्या हुआ है प्रभु जी, प्रदीप आप जी, गलत अर्थ लगा रहे हैं, इसलिए प्रदीप प्रभु जी, ये जो आप अर्थ नहीं, निकाल रहे हैं ना, ये मेरे को लग रहा संस्कृत है डेलिबरेटली बताया गया है, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट डिफरेंस। अच्छा, हाँ, अब अगर आप साउथ की साइड जाएंगे तो दे वर सेइंग दैट बोथ आर डिफरेंट, दोज आर नॉट, जिनको नहीं पता है
अगर आप हाँ। रामचरितमानस भी पढ़ोगे तो उसमें भी बताया है कि शिव भी मैं ही हूँ और राम भी मैं ही हूँ। अच्छा। मेरे को ज्यादा पता नहीं है, प्रभु जी को ज्यादा पता है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि ऐसा देखिए लिखा सब है, करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन तत्कुरुषु मदर्पणम। तो ये शिव और ब्रह्मा क्या है, गुणावतार हैं भगवान के। लॉर्ड लेकिन हिमसेल्फ। ये देखो बांग्ला शिव ब्रह्मा आदि देवताদের नाम ভগবানের নামের অথবা স্বতন্ত্র বলে মনে করা, কখনো কখনো নাস্তিকেরা মনে করে যে কোনো দেবতা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু যথার্থ জানেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও ভগবান বিষ্ণুর সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। তাই যদি মনে করে যে দুর্গা দুর্গা অথবা কালী উচ্চারণ করা হরে কৃষ্ণ উচ্চারণ সমান, তাহলে সেটা মস্ত বড় অপরাধ। বাংলা प्रभु जी मुझे ना एक मीटिंग में जाना है, तो मैं अभी क्लोज कर दूं क्या? ठीक है, ठीक, हाँ हो गया ये, आप इसको क्लोज कर दिए, रिकॉर्डिंग करके आप निकल जाइए, ठीक है। ओके, लेकिन आप होस्ट हैं, आप क्लोज करेंगे तो मैं आपको ठीक है। आपको कर देता हूँ, ओके, कहीं सबके लिए ना हो देखिए जाए इसमें क्या ये है। मीटिंग। हाँ, ओके। ओके।